میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر. وکیل تھا, دیانتدار وکیل تھا, اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا, کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی. ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا, جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ the executive authority flows from the head of the government of Pakistan and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے, do not forget. اور اس میں برا مت مانے, ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے. قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے. اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو, تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا, کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا, کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا, اور ایک دیانتدار آدمی جیسے حمود الرحمان نے اس کمیشن کی رودات سنی اور رپورٹ لکھی. پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز, زمانی نہیں, مہرے نہیں, پپٹس نہیں, سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت دو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان, کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے. یہ فارم 47 والا مینڈیٹ نہیں ہے, مگر ان کو بھی اگر کوئی لوگ مینڈیٹ دے دیں کہ بھائی جو تم کرو گے بات اس کے اوپر ہم بھی کھڑے رہیں گے, تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا, وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ, میں کلیم کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا, توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے, ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے. حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا, اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی, اپنی گواہی دی, اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں, ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا, پتہ نہیں کس کے اوپر, یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مئی مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, وہ عمران خان نے کہا پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں, یہ بتائیے منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا, عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں. کوئی سیکشن آفیسر نہیں, کوئی فارن منسٹری نہیں,
कोई सेक्रेटरी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। और अगर इमरान खान ने फैसला किया कि कोई बात कहनी है तो उसने हलफ उठाया कि मैं कहूंगा, उस हलफ के ऊपर आपने साइफर केस किया हुआ है इसके ऊपर। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इन सारे हथकंडों के बाद पहली बात मैंने आपसे की कि स्टेक होल्डर, कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा, इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है, मेरा मंतिक है, मामला अगर सिर्फ माफी का है तो मईशत तबाह कर दोगे तुम माफी के चक्कर में, तुम मुल्क को तबाह कर दोगे। गरीब तर होता जा रहा है, उसको तबाह कर दोगे क्योंकि माफी नहीं मांगी। ये अपनी अना कहां पहुंच गई है कि सिर्फ माफी। दूसरे ये कि मैं कहता हूं कि आदमी बैल्कनी पर जाए, आदमी परिंदों की तरह बर्ड्स आई व्यू ले के हालात क्या है, इतनी जसारत तो करो, इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो कि ऊपर से देखो तो सही कि हालात क्या हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कितनी आपकी बदनामी है। और आप घूम घूम कर ये बात कहते हैं कि जी जमहूरियत, हाइब्रिड जमहूरियत। हमारा वजीर आजम एक बना काकड़, भाई जरा सा एक मिनट थोड़ी सी खामोशी, मैं भी आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करूंगा चंद मिनट बाद, है ना। तो वजीर आजम बना, वो दुनिया में जाकर कहता रहा कि जी हम हाइब्रिड हुकूमत, हम जमहूरियत नहीं है। बड़े फख्र से कहता था, यार मेरे मुल्क को बदनामी किए चले गए, हर जगह बैठकर कहता था ये हाइब्रिड हुकूमत है, हम जमहूरियत के काबिल नहीं है। क्या सिकंदर मिर्जा साहब की किताब छपी है अभी, खावर मेहदी साहब ने, उसमें सिकंदर मिर्जा कहता है 58 में जब ये सदर बने, सदर बनते ही पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जी ये मुल्क जमहूरियत के काबिल नहीं है। क्यों जमहूरियत के काबिल नहीं है? क्योंकि अनपढ़ हैं। पहले हम चलाएंगे, उसके बाद जब ये समझ लेंगे तब जमहूरियत आएगी। अच्छा, अब तक आपने क्या किया? 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, आपने पढ़ने भी नहीं देना ताकि जमहूरियत आपकी मंतिक से जमहूरियत कभी आए ना। तो लिहाजा मैं कहता हूं बर्ड्स आई व्यू, जरा से ऊपर होकर सोचें। तो तीसरे ये कि माजी से सीखें, अपने आप किसी को तो कहें कि माजी पढ़ ले, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो किसी को कह दो भाई किताब पढ़ के खुलासा बता दो मुझको, ये तो हो सकता है ना, किताब पढ़कर खुलासा बता दो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मुल्क के दिफा के अंदर मसरूफ हूं, किताब पढ़ के खुलासा बता दो, वो भी तैयार नहीं आप। तीसरी बात यह कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इमरान खान की एक डेफिनेशन अपने मुताल्लिक है और मैं भी यही समझता हूं कि हम ऑप्टिमिस्ट हैं, हम कभी पेसिमिस्ट नहीं हुए। मगर इस वक्त मैं क़यादत से ये अपील करता हूं, कहा गया अली मोहम्मद खान साहब, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं क़यादत से अपील करता हूं कि इस ऑप्टिमिज्म के बीच में एक पॉसिबिलिस्ट बने, पॉसिबिलिटीज के ऊपर तवज्जो दें कि कहां से रास्ते मिलेंगे और कहां से होगा। बगैर रेजिस्टेंस के नहीं होगा, ये मुझे मालूम है, मेहनत किए बगैर नहीं होगा, इसके बगैर नहीं होगा कि आप तैयार हो जाएं रूल ऑफ लॉ के लिए। ये रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद नई नहीं है, सुकरात के ज़माने से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक चल रही है, आपका फर्ज बनता है। तो पांचवें ये कि पोलराइजेशन खत्म करेगा, कौन खत्म करेगा? इमरान खान ने पोलराइज नहीं किया है, ये चोर एक तरफ, ये बदमाश एक तरफ, ये गासिब एक तरफ, ये जुल्म करने वाले एक तरफ, ये जालिम एक तरफ, और एक तरफ कौम है। पोलराइजेशन उस एलीट कैप्चर की वजह से हुआ है जो क्रीम खाती रही है और गरीब को कुछ नहीं मिला, और IMF के हथकंडों में फिर अब फंसेंगे हम। तो लिहाजा पोलराइजेशन खत्म करें, कौन करेगा? आप ही की तरफ से होगा। तीसरे ये कि जज्बात को छोड़ें, मैं कुरान से गवाही दे चुका हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से गवाही दे चुका हूं कि अगर मसला फंस गया है तो दरगुजर करके आगे निकलो। कौम का मामला है यार, कौम को क्यों टांग रहे हो तुम? कौम का मामला है, दरगुजर करो। सिर्फ माफी का ही मामला है ना, अना का मामला है। आगे चलो, माफी करो, दरगुजर करो, जो करना है करो, मगर जोड़ कर चलो। मईशत बेहतर नहीं होगी बगैर अवाम के मैंडेट के। आपने देख लिया कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, आपने देख लिया कि वही चोरों को दोबारा ट्राई करते जाओ, पहली ट्राई, दूसरी ट्राई और तीसरी ट्राई, तो मामला सही नहीं होंगे। और फिर आखिरी चीज मेरी मशवरे की है, और कोई काश ये मेरी तकरीर उन तक पहुंचा दे कि फिर आखिर में फिर जूम इन करो। मैंने कहा था ऊपर जाओ, ऊपर से देखो, इन चीज़ों स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, सारी चीज़ें सीखो, फिर जूम इन करो कि कहाँ से मामला ठीक होगा और उसके ऊपर अमल करो। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक कैफियत ये है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड सेटलमेंट क्या होगा और वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स क्या हो सकते हैं। वर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मुल्क का हाल बहुत ख़राब है, गुर्बत बहुत बढ़ी हुई है,
कुछ भी हो सकता है। आर्मी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है करंट क़यादत ने, आर्मी मेरी भी है। शोहदा को आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आरिफ अलवी, इमरान खान का सिपाही, जब प्रेसिडेंसी में था तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि हर शहीद के घर पर मैं तो गया या फोन किया, हर शहीद के, लोग जानते हैं, सैकड़ों को मैंने फोन किया। उनकी बीवियों के साथ, शोहदा की बीवी अगर फोन पर बात करती थी तो वो रोती थी और मैं रोता था। अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई? हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करेंगे। और आखिर के अंदर मैं चाहता हूं कि एक चीज पर आप मुत्तफिक हो जाएं और मेरे साथ साथ इस गुफ्तगू के अंदर इसको क्लोज करें। मैंने आपको मसाइल बताए, मैंने आपको इश्यूज बताए, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इंसाफ चाहते हैं, मगर मैं क्लोज करना चाहता हूं कि कानून की हुक्मरानी कायम करो। पहली डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो। तो मेरे साथ कहें, कानून की हुक्मरानी कायम करो, कानून की हुक्मरानी कायम करो। इमरान खान को रिहा करो, ये दूसरी डिमांड। कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा? मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नखरे हैं। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नहीं इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को रिहा करो, पाकिस्तान जिंदाबाद।